Hello, everyone, and welcome to another session of zoology. Today, the chapters that we are going to cover are going to be excretory products and their elimination, as well as locomotion and movement. Excretory products and their elimination में आपको पता है कि हम किडनीज और उसके अराउंड के जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे और लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम दो पार्ट कवर करते हैं। एक होता है आपका मस्कुलर पोर्शन, मस्कुलर पार्ट, और दूसरा होता है आपका स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट। ओके, ये दोनों ही चैप्टर्स आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं एंड ये दोनों ही चैप्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, so let us not waste much time and let us try to deep dive into our world of questions. Okay, so here I am presenting the first questions on your screen. Okay, so here is the first question on your screen. This question goes as, in humans, kidneys are situated between the levels of, okay, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपको याद होना चाहिए कि किडनी जो होती हैं, अगर आप उनको वर्टिब्रे के लेवल पे कंपेयर करो या वर्टिब्रे के लेवल के साथ उनको थोड़ा सा लेके आओ, तो वेयर आर किडनी सिचुएटेड एट द लेवल्स ऑफ वर्टिब्रे? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट किडनीज आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रे। अब आपको पता है कि जो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रे होती हैं, दे आर 12 इन नंबर। ओके, सो वी कैन से लास्ट थोरैसिक मींस T12 to L3. Okay, so if we talk about the location of the kidney with respect to vertebrae, the location of the kidney is going to be T12 and L3. Okay, so your option A, last thoracic and third lumbar vertebrae, correctly justifies this. Okay, so the correct answer to this question is going to be option A. Moving on to the next question. The DCTs of many nephrons open into a straight tube called. Okay, this question is based on the structure of a nephron. अब आपको पता है कि nephron में there is this DCT, okay, and then DCT opens into a straight tube. And what is this straight tube called into which DCT opens? This is called as collecting duct. Okay, this is called as collecting duct. So your correct answer is going to be option C, collecting duct. Moving on, next question. A tuft of blood capillaries present between afferent and efferent arterioles is, okay, तो आपको पता है आपका afferent arteriole होता है, then you have your efferent arteriole, और afferent और efferent arteriole के बीच में there is this tuft of capillaries which is called as glomerulus. Okay, so this tuft of capillaries between afferent and efferent arteriole is called as glomerulus. Okay, so the correct answer to this question is going to be option D. Moving on, next question. Which component of blood is most likely to pass through slit pores formed by podocytes during filtration? Okay, basically इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि when you are forming your glomerular filtrate, okay, how is your glomerular filtrate formed? You know, it passes through filtration membrane. So in the formation of glomerular filtrate, what component of blood will come here and what component of blood will not? सो एज यू नो, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें आपका कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आते। ओके, तो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कोई भी ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होता, और साथ ही साथ आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी नहीं आते। Okay, so when we talk about the formation of glomerular filtrate from blood, we exempt blood cells and plasma proteins because they are not going to be a part of your glomerular filtrate. Okay, so यहाँ पे correct answer क्या जाएगा? यहाँ पे आपका correct answer जाएगा, देखो, RBC, WBC, formed elements will not be present, plasma proteins will not be present. So the correct answer to this question is going to be option D, plasma without plasma proteins. Plasma proteins, as you know, albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, etc. Here, next question. In a meromyosin molecule, the heavy meromyosin HMM consists of which parts? Okay, so here we are talking about a myosin structure, जिसका कि आपका individual unit या monomer होता है meromyosin. So if you talk about meromyosin basically has a head. With a head, it has a short arm, and then it has a tail. Okay, it has a tail. तो यहाँ पर ये जो आपका head और short arm होता है, head and here your short arm. Your head and short arm, these are part of HMM. HMM means heavy meromyosin. और जो आपकी tail होती है, the tail is a part of LMM, which means light meromyosin. Okay, तो जो आपका एक meromyosin molecule होता है बच्चों, the meromyosin molecule is made up of HMM, which is the heavy meromyosin part, and LMM, which is the light meromyosin part. Your heavy meromyosin contains head plus
short arm, whereas your light meromyosin will only contain tail. Okay, तो यहाँ पे आपसे HMM के बारे में पूछा गया है. So your correct answer is going to be option B, head and short arm. Moving on. Hemodialysis is used as a treatment in which condition? Okay, hemodialysis जो होता है बच्चों, वो एक प्रोसीजर होता है. Now why is this procedure performed? तो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसीजर होता है, इट इज बेसिकली परफॉर्म टू प्यूरिफाई योर ब्लड. प्यूरिफाई योर ब्लड, इट मीन्स टू रिमूव यूरिया. Hemodialysis is performed when your kidney is not performing well or when your kidney is not performing enough. Okay, in that condition urea will start to accumulate in your blood, which is not a good sign. Okay, so to remove this excess urea from your blood, hemodialysis is performed. Okay, now, the increased amount of urea in blood is called as uremia. Okay, so hemodialysis is used as a treatment in which condition? It is used as a treatment in uremia when there is high urea in your blood. And why will there be a high urea in your blood? Because your kidneys are not performing well. Okay, so the correct answer to this question is going to be option A. Moving on. What fraction of cardiac output is filtered by the kidneys per minute? Okay, cardiac output, as you all know, is 5000 ml per minute. Okay, if we talk about normal cardiac output, it is 5000 ml per minute. Now, out of this 5000 ml, 100 to 1200 ml blood is given to kidneys per minute for filtration. Okay, so how much fraction of cardiac output is filtered by kidneys? It is roughly going to be one fifth. Okay, so the correct answer here is going to be option C, one fifth. Approximately, roughly, one fifth of cardiac output is filtered by the kidneys per minute. Moving on to the next question. Match excretory structures with organisms and choose the correct options. Okay. So in column 1, you have the name of these excretory structure, and in column 2, you have name of some organisms, and you basically have to find out which excretory structure which will go with which organism. Okay. So protonephridia. बच्चों आपको पता है प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स की बात करें तो वो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो आपको प्लेथी में मिलते हैं. In some helminthes you can also find it, और आपको ये cephalochordates में मिलते हैं. ओके, सो प्रोटोनेफ्रीडिया में आपका जो एम्फीऑक्सिस होता है, ओके, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फीऑक्सिस और लैंसलेट, इट कंटेन्स प्रोटोनेफ्रीडिया. ओके, so प्रोटोनेफ्रीडिया विल गो विथ cephalochordate, एम्फीऑक्सिस, नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया आपको एनालिडा में मिलता है काफी ज्यादा, तो नेफ्रीडिया विल गो विथ अर्थवॉर्म्स, ग्रीन ग्लैंड्स. ओके, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन क्रस्टेशियन सच एज प्रॉन्स. और मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपको किस में मिलते हैं? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपको इंसेक्ट्स में मिलते हैं. तो डी इज गोइंग टू बी 1. तो यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? इट विल बी 4 2 3 1. ओके, नाउ इफ यू लुक एट ऑप्शन 4 2 3 1, you can find it in option D. Okay, so your correct answer for this question is going to be option D. Moving on. In human kidneys, the cortex extends between medullary pyramids as renal columns called. Okay, दिस इज अ वेरी फेमस नीट क्वेश्चन. काफी बार ये नीट में पूछा जाता है. तो आपको पता है आपकी किडनी में दिस इज योर मेडुलरी पिरामिड. ओके, और यहाँ पे आपका जो कॉर्टेक्स होता है, the cortex is going to extend here in medullary pyramids. Okay, here is the cortex and it will extend in the medullary pyramid in the form of column. So what is this column called? So basically ये जो column होते हैं इनका क्या नाम होता है? They are called as columns of Bertini. Okay, they are called as columns of Bertini. So the correct answer to this question is option B, columns of Bertini. Moving on. The osmolarity gradient in renal medullary interstitium is mainly caused by. Okay, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जब आप एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में कॉर्टेक्स से मेडुला मूव करते हो, ओके, या फिर जस्ट किडनी में भी आप कॉर्टेक्स से मेडुला मूव करते हो, so there is a gradient. Gradient means change. And where is this change observed? It is observed in osmolarity. For example, आपके cortex में जो osmolarity होती है वो 600 होती है, but medulla के आप एकदम end portion में जाओगे तो 1200 होती है. Okay? Cortex में basically 300 होती है, 300, फिर 300 से मूव करती जाएगी 600, 900 and then 1200. So there is this
ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ओके। और ये जो ऑस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट होता है ये किसकी वजह से होता है, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl एंड यूरिया, ओके। तो जो आपकी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट होता है रीनल मेड्यूला में, इट इज कॉज्ड ड्यू टू NaCl एंड यूरिया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, NaCl एंड यूरिया। नाउ the amount of filtrate formed by the kidneys per minute, it, okay, amount of filtrate formed by the kidneys in a given time frame, ये क्या होता है बच्चों आपको, ये हम कहते हैं यहाँ पर, this is called as glomerular filtration rate, okay, it is the glomerular filtration rate, जिसको कि हम abbreviate करते हैं as your GFR, okay। तो जीएफआर क्या होता है, बेसिकली एक गिवन टाइम पीरियड में जितना भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ओके। और आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए यू हैव टू रिमेंबर टू वैल्यूज, वन इज 125 ml per minute and the another one is 180 liter per day. Okay, so these are the two values that you have to remember. 125 ml per minute and 180 liter per day. Okay, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड पर मिनट। तो पर मिनट के लिए कौन सा आंसर सही जाएगा, इट विल बी बी, विच इज गोइंग टू बी 125 ml per minute. Moving on, cortical nephrons differ from juxtamedullary nephrons in all of the following except, ओके। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस प्रेजेंट किया गया है और वहां पे बोला गया है कि इसमें से जो तीन है दे आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन कॉर्टिकल एंड juxtamedullary nephrons बट वन इज नॉट, ओके। तो चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका देयर नंबर। नंबर आपको पता है बिल्कुल ही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, बिकॉज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जहां आपके 80 to 85% होते हैं, वहीं आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं दे आर ओनली 10 to 15%, ओके। सो नंबर इज डेफिनेटली अ डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। नाउ साइज ऑफ लूप ऑफ हेनले, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले होता है बच्चों वो शॉर्ट होता है, लेकिन जो आपका जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, काफी लॉन्ग होता है। So this is also definitely a differentiating factor. Then absence of vasa recta, this is true। जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपकी वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जो आपका जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वहां पे आपकी वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, ओके। नो डी, प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का जो प्रेजेंस है दैट इन बोथ द नेफ्रॉन, सो द करेक्ट आंसर व्हिच इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फीचर is going to be D, presence of peritubular capillaries, okay। Now next question, malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood, a condition called यूरीमिया, ओके। जब आपके ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसको ट्रीट करने के लिए आप हीमोडायलिसिस यूज कर रहे थे, है ना। तो हीमोडायलिसिस आप किसके लिए यूज कर रहे थे, हीमोडायलिसिस आप यूज कर रहे थे टू ट्रीट एक्सेस accumulation of urea in blood, and that condition where there is this accumulation of urea in blood, it is called as uremia, okay। So the correct answer to this question is going to be option A, uremia। Moving on, the check on RAS is maintained by RAS, which is your renin angiotensin aldosterone system, okay। तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है one system which works antagonistic or opposite to RAS mechanism, ओके। तो आपको पता है जो आपका रास मैकेनिज्म होता है, देखो रास मैकेनिज्म क्या क्या करता है आपका। रास मैकेनिज्म सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ओके। रास मैकेनिज्म जो होता है वो आपका वाटर का जो एक्सक्रीशन होता है उसको कम करता है, और रास मैकेनिज्म आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाता है, ओके। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ाता है। अब इस पे चेक कौन रखता है, इस पे चेक एक ऐसा हार्मोन रखेगा जो इसके अपोजिट काम कर रहा हो, और इसके अपोजिट आपका कौन सा हार्मोन काम करता है, इसके अपोजिट आपका एएनएफ काम करता है, एएनएफ विच इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर विल डू ऑल द थिंग्स अपोजिट टू रास मैकेनिज्म। जैसे अगर आपका रास मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था तो एएनएफ आपका ब्लड प्रेशर कम करेगा, ठीक है। रास मैकेनिज्म आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाता है तो एएनएफ आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम करता है। रास मैकेनिज्म अगर आपके वाटर के एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो एएनएफ आपके वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, ओके। so ANF, which is your atrial natriuretic factor, it actually acts completely opposite to RAS mechanism, okay। So the correct answer to this question is going to be option C, ANF।
Next question. The filtration slits of the renal filtration membrane are formed by. Okay, filtration slits क्या होती हैं? They are the empty spaces or they are the fine slit-like spaces which are left when podocytes are arranged. है ना? तो podocytes are arranged in a very intricate and a very delicate manner. Podocytes का arrangement ऐसा होता है कि they leave some fine slit-like spaces between them, and these slit-like spaces are called as filtration slits. Okay, so the filtration slits of the renal filtration membrane are formed by, they are formed by podocytes of Pumann's capsule. Okay, moving on to the next question. In a striated muscle fiber, the functional unit of its contraction is. Okay, या तो आप striated muscle fiber बोल दो या तो आप skeletal muscle fiber बोल दो. Okay, अगर आप striations की बात करोगे तो आपके skeletal muscle और cardiac muscle में striations present होते हैं, बट जो आपका visceral या smooth muscles होते हैं उनमें striations present नहीं होते हैं. अब अगर आप skeletal muscle की बात करोगे तो skeletal muscle में the functional units of its contraction is going to be, it is going to be sarcomere. Okay, तो जो sarcomere होता है, it is the structural and functional unit of contraction of a skeletal muscle. Okay, so the correct answer here is going to be option B, sarcomere. Moving on. Continuous activation of muscle leads to accumulation of dash due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue. Choose the option that fills the blank correctly. Okay, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन मिला गया है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप मसल का कंटिन्यूअस यूज करो तो उसकी वजह से कौन सी चीज है जो एक्यूमुलेट होती है जिसकी वजह से आपको मसल फैटीग होता है. ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाता है बच्चों? देखो, मसल जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है ना, व्हेनेवर योर मसल्स अंडरगो एनएरोबिक ब्रेकडाउन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से किसका एक्यूमुलेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है. और जब ये लैक्टिक एसिड आपके मसल में एक्यूमुलेट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपको मसल्स में पेन होती है, स्टिफनेस रहती है. ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज मसल फैटिग. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड. मूविंग ऑन. देखो बच्चों, ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. इस डायग्राम में यू हैव बीन प्रेजेंटेड विथ वन हाइंड लिम्ब. ओके, तो वन हाइंड लिम्ब हैज बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो बीच में बोन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन? तो ये जो आपको बीच में बोन दिख रही है, नी में आपको जो बोन दिख रही है, दिस बोन इज कॉल्ड एज नी कैप. ओके, दिस बोन इज कॉल्ड एज नी कैप और पैटेला. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नी कैप और पेटेला. और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है, पेटेला, दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्वेट. ओके बच्चों, जो आपका स्वेट होता है, स्वेट में इसमें से ऑप्शंस में से तीन चीजें प्रेजेंट है एंड वन थिंग इज नॉट प्रेजेंट. अब चलो देखते हैं ऑप्शंस अपने. NaCl. NaCl जो होता है वो स्वेट में प्रेजेंट होता है. यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो फाउंड इन स्वेट. लैक्टिक एसिड, यस. स्टेरॉल्स, ओके. जो स्टेरॉल्स होते हैं बच्चों, वो आपके स्वेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं बिकॉज वो आपके स्वेट ग्लैंड से नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं. जो आपके स्टेरॉल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन योर सीबम, है ना. वो आपके सीबम में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है. ओके, तो हियर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्टेरॉल, ऑप्शन डी, स्टेरॉल. क्यों? क्योंकि बाकी तीन जो चीजें हैं वो आपके स्वेट में प्रेजेंट है, बट जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, स्टेरॉल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर स्वेट. Moving on. Okay, now this is a statement based question. Read the following statements and choose the correct answer. Option statement A देखते हैं बच्चों. Statement A है आपका, lungs help in excretion as they remove CO2 and water. Okay, ये जो statement है बच्चों, ये absolutely correct है. Okay, lungs are also an excretory organ. Why are they excretory organ? Because आपकी body में जो waste material होता है CO2, ये उसको क्या करते हैं? उसको remove करते हैं. Okay, so this statement is absolutely correct. अब चलो दूसरा statement देखते हैं. Statement B. Sweat also helps in the elimination of waste, but its primary function is to facilitate a cooling effect on the body surface. Okay, देखो स्वेट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जस्ट हमने पिछला डिस्कस किया था. तो आपको पता है जो आपका स्वेट होता है उसमें NaCl होता है, यूरिया होता है. तो आपको पता है कि स्वेट के थ्रू अगर आपका यूरिया रिमूव हो रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो स्वेट है वो वेस्ट रिमूवर में हेल्प कर रहा है. बट क्या वेस्ट रिमूव करने के लिए स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी में? नहीं. स्वेटिंग के साथ वेस्ट रिमूव हो जाती है, दैट इज अनदर थिंग. बट आप
हमेशा स्वेट क्यों करते हो? बिकॉज यू आर होम्योथर्मस, है ना? आप वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस होते हो, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड। अब वार्म ब्लडेड है तो आवर बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और कभी भी अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगे तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, ताकि स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट आए और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो स्वेटिंग का प्राइमरी फंक्शन वेस्ट रिमूवल कभी भी नहीं होता। स्वेटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट और टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है बच्चों, और आपका स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a large triangular flat bone of the appendicular skeleton present between the second and the seventh ribs? Okay, यहाँ पर there is this large triangular flat bone which is present at the second and seventh rib. Okay, ये कौन सी bone होती है बच्चों आपकी? This bone is called as scapula. Okay, स्कैपुला जो होती है, स्कैपुला आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होती है। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन, इट इज अ फ्लैट बोन एंड इट इज आल्सो सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ सेकंड एंड सेवेंथ रिब। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, स्कैपुला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The joints which allow considerable movements and play a significant role in locomotion are, देखो आप तीन तरीके की जॉइंट पढ़ते हो, है ना? एक तो होती है आपकी फाइब्रस जॉइंट्स। जो आपकी फाइब्रस जॉइंट्स होती हैं बच्चों, वो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करती हैं। ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन द स्कल और सूचर्स इन द स्कल। दूसरी होती है आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, जो आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है बच्चों, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे एंड दिस विल अलाउ सम मूवमेंट। ये फ्री मूवमेंट नहीं अलाउ करती है, दे विल ओनली अलाउ सम मूवमेंट। देन आती है आपकी साइनोवियल जॉइंट। ओके, साइनोवियल जॉइंट जो कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आपकी बॉडी में अलाउ करती हैं, और आपकी बॉडी में जो आप मूवमेंट कर रहे हो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं बच्चों, ये बहुत तरीके की हो सकती हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो सकती हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट हो सकती हैं, ये सैडल जॉइंट हो सकती हैं। ओके, ये हिंज जॉइंट हो सकती है, ये एलिप्सॉइड जॉइंट हो सकती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, बट ऑल दीज साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ यू टू मूव वेरी फ्रीली। अब चलो बच्चों आपका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखो तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एकदम सही है, लेकिन joint between skull bones is fibrous joint. So this will not allow you considerable movement. Now hinge joint and ball and socket joint. Hinge joint and ball and socket joint दोनों ही आपकी साइनोवियल जॉइंट होती हैं, जो कि आपको एक बहुत बढ़िया मूवमेंट प्रोवाइड करेंगी। ऑप्शन सी देखिए, joint between adjacent vertebrae, this is your cartilaginous joint। सैडल जॉइंट आपका साइनोवियल जॉइंट है, बट एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। ग्लाइडिंग जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन स्कल बोन्स, एज डिस्कस जॉइंट बिटवीन स्कल बोन्स इज अ फाइब्रस जॉइंट, so this will not allow considerable movement। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हिंज जॉइंट। बिकॉज आपकी जो हिंज जॉइंट होती है, इट अलाउज यू अ कंसिडरेबल मूवमेंट, कंसिडरिंग कि हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर बोथ साइनोवियल जॉइंट। So the correct answer is to this question is going to be option B. Moving on. Choose the mismatch with respect to disorders of muscular or skeletal system। चलो देखते हैं, ठीक है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीजेनरेशन ऑफ ओनली विसरल मसल, ये गलत है। जो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है वो एक्चुअली में आपके स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेशन करवाती है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। Tetany occurs due to low calcium ion. This is absolutely correct. Gout due to purine metabolism disturbance. ठीक है, ये बात भी एकदम सही है। एंड डी ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू लो ईस्ट्रोजन, सही। ओके, तो आपका बी, सी एंड डी जो है बच्चों वो करेक्ट है। तो आपका मिसमैच वाला ऑप्शन क्या है? आपका मिसमैच वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिकॉज मस्कुलर डिस्ट्रोफी विल कॉज द डीजेनरेशन ऑफ skeletal muscles. Hence your option A is going to be your correct answer. Moving on. Select the correct set of bones which are present only in lower limbs। Okay, lower limbs मतलब आपके hind limbs की बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कौन सी ऐसी बोन है जो सिर्फ आपके hind limbs में प्रेजेंट होती है। ओके, टीबिया आपके हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट है, बट रेडियस जो है वो आपके फोर लिम्ब में प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं होगा। देन वी हैव ह्यूमरस एंड टीबिया। ह्यूमरस जो होता है बच्चों वो आपके फोर लिम्ब में प्रेजेंट होता है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। कॉक्सल बोन एंड फीमर, फीमर आपके हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट है, लेकिन कॉक्सल बोन जो होती है बच्चों, कॉक्सल बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। कॉक्सल बोन जो होती है इट इज अ पार्ट ऑफ योर पेल्विक गर्डल। ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट।
fibula and tarsals. Okay, fibula and tarsals, it is absolutely correct. Both of these bones are present in your hind limb and they are a part of your lower limb. Okay, so the correct answer to this question is going to be option D, fibula and tarsals. Moving on. Next question. All true ribs are blank space attached to thoracic vertebrae and blank space connected to sternum with hyaline cartilage. Okay. तो ये देखो ये ribs का question है और ये एक fill in the blank question है. So all true ribs are attached to thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae जो आपका vertebral column होता है बच्चों वो dorsally present होता है ना? तो true ribs are attached to thoracic vertebrae dorsally. Okay. देन एंड कनेक्टेड टू स्टर्नम विथ हाइलिन कार्टिलेज. जो आपका स्टर्नम होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है रिब्स विल connect with sternum ventrally. Okay, so your A is going to be dorsally and your B is going to be ventrally. Looking at the options, जो आपका option B है, okay, your option B, dorsally and ventrally, this is going to be your correct answer. Moving on. Okay. Now, here is the next question in your screens. The ability of producing concentrated or hypertonic urine in vertebrates generally depends on the. Okay, देखो यहाँ पर एक काउंटर करंट मैकेनिज्म का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म की मदद से ही आप क्या कर पाते हो, आप एक कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन जो होती है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो. अब आपको पता है बच्चों की जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, अगर हमारे अंदर दो तरीके के नेफ्रॉन्स हैं, जैसे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया, तो हमारी बॉडी में जो ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होता है. ओके, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्यों होता है? बिकॉज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ हेनले होता है उसका लेंथ क्या होता है, काफी ज्यादा होता है. अगर हम मैमल्स में भी बात करें तो जो आपका कैंगारू रैट होता है उसमें बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होती है. क्यों? बिकॉज उसके लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है. नाउ the ability to produce a concentrated urine depends on the counter current mechanism, and counter current mechanism can be influenced by the length of Henle's loop. So here your correct answer is going to be option C, length of Henle's loop. Okay, moving on to the next question. The reabsorption of sodium from glomerular filtrate is regulated by the hormone. Okay, देखो बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका अगर सोडियम रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसको कौन सा हार्मोन करवाता है. अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये दिस क्वेश्चन एक्चुअली कम्स अंडर रास मैकेनिज्म है ना. जो आपका रास मैकेनिज्म होता है, रास मैकेनिज्म के अंडर ये वाला पार्ट आता है. रास मैकेनिज्म में यू हैव रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ओके, अब यहाँ पे जो आपका एल्डोस्ट्रॉन होता है, एल्डोस्ट्रॉन एक्चुअली एक्ट्स ऑन डीसीटी, और डीसीटी से वो क्या करता है, वो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करता है. ओके, सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन की वजह से ऑस्मोलैरिटी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है. ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्राइमरीली वाटर रीअब्सॉर्प्शन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एडीएच. ओके, बिकॉज एडीएच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन. लेकिन एल्डोस्ट्रॉन क्या सीधे वाटर रीअब्सॉर्प्शन करता है? नहीं, एल्डोस्ट्रॉन आपका एक्चुअली सोडियम रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, जिसके चलते ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस होते हैं और आपका वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है. ओके, तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन एल्डोस्टेरोन. ओके, ग्लूकागन आपको पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है. सिक्रेटिन अगेन आपके पैनक्रियास पे एक्ट करता है. एड्रेनलिन जो होता है आपके एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर fight or flight response. Okay, so the correct answer here, the absorption of sodium is going to be option D, aldosterone. Okay, moving on. Next question. During micturition, the urinary bladder and the urethral sphincter. Okay, जब भी आपका मिक्सचुरेशन होता है बच्चों, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है और आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या करता है, रिलैक्स करता है. ओके, बोथ योर एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड योर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ओके, बोथ ऑफ द स्फिंक्टर विल रिलैक्स एंड योर यूरिनरी ब्लैडर विल कंट्रैक्ट. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस, विच इज योर ऑप्शन ए. ओके, सो आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लाइकोसूरिया इज द कंडीशन वेयर. ओके, ग्लाइकोसूरिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, आपको आपकी यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलता है. ओके, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया. ओके, तो यहाँ पर आप देखो,
यहाँ पे बच्चों ग्लूकोज नहीं लिखा है बट यहाँ पे शुगर मिला लिखा है और आपको पता है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं और डाइसैकेराइड्स होते हैं दे आर स्वीट इन नेचर तो उनको शुगर्स भी कहा जाता है ओके सो जस्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन or the presence of sugar in urine is going to be called as glycosuria. So the correct answer here is going to be your option B. Moving on to the next question. Okay, this is your match the column question. अब यहाँ पे देखो list one, list two. पाम बोन्स ओके यहाँ पे आपसे पाम बोन्स के बारे में पूछा जा रहा है तो पाम में कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है बच्चों पाम्स में प्रेजेंट होती है आपकी मेटाकार्पस ओके रिस्ट बोन्स रिस्ट ओके तो रिस्ट में आपकी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है रिस्ट में आपकी बोन्स प्रेजेंट होती है कार्पल्स एंकल बोन्स एंकल में कौन सी बोन होती है टार्सल्स और डिजिट्स बोन दैट इज योर फिंगर एंड टोज तो फिंगर एंड टोज में कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है फैलेंजेस ओके सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2 3 4 1 चलो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं बच्चों ऑप्शंस देखो कहाँ पे 2 3 4 1 प्रेजेंट है तो इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी ठीक है तो जो आपका ऑप्शन बी है 2 3 4 1 दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर मूविंग ऑन ओके वी अगेन हैव वन मैच द कॉलम क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे भी बोन्स के बारे में पूछा जा रहा है क्रेनियल बोन ओके क्रेनियल बोन अब यहाँ पे जितनी भी लिस्ट टू में बोन्स है बच्चों उसमें जो आपकी फ्रंटल बोन होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्रेनियल बोन ठीक है आर्म बोन क्या होगी आपकी आर्म बोन इज गोइंग टू बी ह्यूमरस देन शोल्डर बोन इज योर स्कैपुला एंड नी कैप इज योर पैटेला ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा 3124 तो चलो देखते हैं कहाँ पे 3124 लिखा गया है सो ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी 3124 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर मूविंग ऑन which is the correct statement regarding muscle contraction okay तो यहाँ पे correct statement regarding muscle contraction option A actin filaments move away from a band during contraction ये गलत है बच्चों muscle contraction के दौरान क्या होता है जो actin filaments होते हैं they actually come towards the A band why because आपका जो myosin filament होता है वो actin filament को खींचता है so this is not correct option B देखो actin and myosin filaments slide over each other okay this is correct option C देखो लेंथ ऑफ ए बैंड इंक्रीजेस गलत मसल कंट्रैक्शन के दौरान आपके ए बैंड की जो लेंथ होती है वो चेंज नहीं होती है ऑप्शन डी देखो आई बैंड इंक्रीजेस गलत बिकॉज आपका आई बैंड जो होता है वो मसल कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है डिक्रीज होता है ओके द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर और यहाँ पे भी आपको पता है जो मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करता है टुवर्ड्स योर एच जोन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is the primary source of energy for muscle contraction? Muscle contraction के लिए जो primary source of energy क्या होता है वो क्या होता है That is the energy currency of our cell. अब आपको पता है जो हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है जो हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है वो कौन है दैट इज योर एटीपी सो द एनर्जी करेंसी of our cell is also going to be the primary source of energy for muscle contraction so the correct answer is going to be ATP. Moving on to the next question. Which of the following conditions is characterized by the inflammation of joints due to an autoimmune response? Okay, देखो बच्चों joints में जब inflammation होता है तो अगर आप यहाँ पे options देखोगे तो gout और osteoporosis ये तो आपके नहीं होंगे because gout जो होता है gouty arthritis भी होता है but gouty arthritis जो होता है that is due to purine metabolism problems okay so not this osteoporosis आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस में आपका जो बोन डेंसिटी होता है बोन डेंसिटी कम होता है बोन डेंसिटी क्यों कम होता है ड्यू टू लो ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स अबव 30 सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आप देखो अब आप यहाँ पे देखो कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होगा लेकिन एक ऑटो इम्यून डिजीज इन दोनों में से कौन सी होती है बच्चों एक ऑटो इम्यून डिजीज इसमें होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिकॉज जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है दैट इज रिलेटेड टू ओल्ड एज ओके इट इज रिलेटेड टू ओल्ड एज बट जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है दैट इज एक्चुअली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर okay affecting your joints so the correct answer here is going to be option C okay option C rheumatoid arthritis is going to be our correct answer moving on ओके अब यहाँ पे आपके सामने असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ठीक है तो चलो बच्चों हम असर्शन को पढ़ते हैं द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट है ना आपको पता है जो आपका क्रेनियम होता है
क्रेनियम और या फिर जो स्कल हो गया, स्कल आपका जो होता है किसको प्रोटेक्ट करता है? आपकी स्कल बोन्स जो होती है जिसमें आपकी क्रेनियल बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट योर ब्रेन। और वहीं पे जो आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। चलो रीजन को देखते हैं। The vertebral column consists of vertebrae that form a hollow structure through which the spinal cord passes. Okay, this is absolutely correct है ना। आपको पता है जो vertebral column होता है उसमें सारी vertebrae जो होती है मिलके एक hollow space बनाती है जिसको हम न्यूरल कनाल कहते हैं और उसमें से spinal cord pass करती है। तो असर्शन भी करेक्ट है बच्चों, रीजन भी करेक्ट है और कहीं ना कहीं जो रीजन दिया गया है दैट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग योर असर्शन। So the correct answer to this question is going to be option A. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. Moving on to the next question. Out of X pair of ribs, Y pairs are vertebrochondral ribs. Okay? देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी जो ट्रू रिप्स होती हैं, है ना, जो आपकी ट्रू रिप्स होती हैं बेटा, हम उनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स। ओके, देन उसके बाद जो आपकी फॉल्स रिप्स होती हैं, ट्रू रिप्स आपको पता है दे आर द फर्स्ट सेवेंथ पेयर, है ना, 1 to 7th पेयर ऑफ रिप्स। जो आपकी फॉल्स रिप्स होती हैं बच्चों, जो कि आपकी 8th, 9th और 10th पेयर होती है, उसको पता है हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज योर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स। और जो आपके लास्ट में फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोटिंग रिप्स, उनको 11th एंड 12th पेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिर्फ वर्टिब्रल रिप्स कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर देखो आपकी टोटल कितनी पेयर ऑफ रिप्स होती है? पेयर्स लिखा है ना, तो टोटल एक्स विल बी 12 पेयर ऑफ रिप्स। ओके, एंड वाई पेयर्स आर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। तो यहाँ पर आपके जो देखोगे ये जो 8th, 9th एंड 10th है, विच इज थ्री पेयर्स आर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आउट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिप्स, 3 पेयर्स आर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स और फॉल्स रिप्स, और वो क्या होती हैं? 8th, 9th and 10th pair. Moving on, name the ion responsible for unmasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. Okay, muscle contraction के दौरान कौन सा ऐसा आयन होता है जो कि क्या करता है? आपका जो एक्टिन होता है उसमें जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वो मास्क्ड होता है, उसको अनमास्क करता है। तो ये कौन सा आयन होता है बच्चों? ये आयन आपको याद होना चाहिए, दिस इज द कैल्शियम आयन। ओके, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होता है जो आपके टीपीसी, ट्रोपोनिन सी सब यूनिट से बाइंड करता है। व्हेन कैल्शियम आयन बाइंड्स विद टीपीसी तो क्या होता है? देयर आर सम स्ट्रक्चरल चेंजेस जहां पे जो आपका टीपीसी वगैरह होते हैं, टीपीआई वगैरह होता है, ये सब क्या करते हैं? दे विल अनमास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग ऑन एक्टिन। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, calcium. Moving on to the next question. Okay, this is going to be our last question for this session. So chalo bachcho, let us try to solve our last question for this session. This question goes as, which of the following is a characteristic feature of red muscle fibers? Okay बच्चों, आपको पता है आपकी बॉडी में दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, वन इज रेड मसल एंड दी अनदर वन इज व्हाइट मसल्स। ओके, अब रेड और व्हाइट मसल्स में अगर हम बात करें तो इसको रेड मसल क्यों कहते हैं भाई? तो इसको रेड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन होता है, सो इट हैज अ वेरी हाई मायोग्लोबिन कंटेंट। और इनको व्हाइट मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें लो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है। ओके, देन यहाँ पर जो आपके रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो अमाउंट होता है दैट इज वेरी हाई, दे हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड व्हाइट मसल फाइबर्स दे हैव अ वेरी लो अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रेड मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, लेकिन आपके व्हाइट मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो काफी हाई होता है। देन अगेन जो बच्चों आपका रेड मसल फाइबर है, रेड मसल फाइबर विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं दे अंडरगो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेड मसल फाइबर्स जो होते हैं बच्चों वो दे आर यूज्ड फॉर सस्टेन्ड फ्लो एंड सस्टेन्ड कंट्रैक्शन, लेकिन जो आपके व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं दे आर यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली फास्ट कंट्रैक्शंस, है ना, जहां पे आपको एक्सट्रीमली फास्ट एंड स्लो ड्यूरेशन के लिए कंट्रैक्शन चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर नॉलेज, दिस इज ऑल वी नो अबाउट रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। नाउ लेट अस ट्राई टू solve this question.
So which of the following is a characteristic feature of red muscle fibers? हाई मायोग्लोबिन कंटेंट, आपको पता है जो हाई मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, इट इज एक्चुअली अ फीचर ऑफ रेड मसल फाइबर. बी देखो, फास्ट कंट्रैक्शन स्पीड, एज आई डिस्कस्ड विथ यू, ये जो फास्ट कंट्रैक्शन स्पीड होती है, दिस इज एक्चुअली अ फीचर ऑफ व्हाइट मसल फाइबर. लो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, रॉन्ग, लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, रेड मसल फाइबर में काफी ज्यादा हाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है. एंड एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म इज अ फीचर ऑफ व्हाइट मसल फाइबर. जो आपका रेड मसल फाइबर होता है उसमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हाई मायोग्लोबिन कंटेंट. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन बच्चों. यहाँ पे आज हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और लोकोमोशन डिस्कस किया है. ओके, बाकी अगर आपको कोई भी और चैप्टर के वीडियोस चाहिए होंगे, किसी भी और चैप्टर पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगा, तो दैट हैज बीन अपलोडेड इन द स्पार्कल अल्फा साइट, आप वहां से जाके उसे देख सकते हो. ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड. ओके, थैंक यू एवरीवन.